یہ ہے کہ جو مسلمان نیند میں ہے سو گیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمان سو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو آثار تو یہی ہے کہ عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہوتا تو ان کی طرف کوئی جاتا نہ، ہم جاتے ہیں، ہم صرف یہ پیروں کے نیچے جو ہے ان کے جھنڈے لگا کے اوپر چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کے اور امریکہ کا غلام ہے، آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، صرف تھوڑا بہت ایران ہی ان کا سائڈ دے رہا ہے۔ وہ بیچارہ اکیلا کیا ساتھ دے گا ان کا؟ سپر پاور امریکہ ان کے ساتھ ہے، اسرائیل کے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ عالمی جنگ میں بدل سکتی ہے کیونکہ جو حالت اس ٹائم فلسطین کی ہوئی ہے بہت بری حالت ہے۔ پاکستان کو کچھ اقدامات لینے چاہیے اس حوالے سے۔ انشاءاللہ بدل سکتی ہے جی، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کیونکہ مسلمان تیار ہیں یہودیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم۔ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اٹھو پاکستان کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حفظہ ساجد رانا حاضر ہے۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کا جو ایک تنازع ہے گزرے 75 سالوں میں، اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی، کیا موقف رہا، کیا لوگوں نے دیکھا، کیا لوگوں نے سمجھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس تنازع میں کیا شدت آئی، اور آج کل جو وہاں پہ حالات ہیں اور جو غزہ میں بمباری ہو رہی ہے اور جو حماس کا اسرائیل پہ حملہ ہے، اس کے بارے میں ہم پاکستانی عوام سے جانیں گے کہ ان کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں۔ میں مانتا ہوں ایز اے مسلمان ہماری ہمدردیاں غزہ کے ساتھ ہی ہوں گی، لیکن اس تنازع کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جو عالمی جنگ ہے وہ اس تنازع کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ خالی غزہ ہی کی بات نہیں، اگر آپ دیکھیں تو لبنانی سرحد ہو گئی یا شامی سرحد ہوگی، جتنے بھی اسرائیل کے ارد گرد ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں وہ سارے انگیج ہوتے جا رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگلے 24 گھنٹوں میں ایران نے بھی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ بھی شاید اس کے اندر اس تنازع میں کود پڑے۔ امریکہ کا بحری بیڑا اور برطانیہ کا بحری بیڑا آلریڈی اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے۔ لوگوں سے جانیں گے کیا ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور اگر ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں تو کیا ہماری تیاری ہے، اور ایز اے اسلامی ورلڈ ہم غزہ کے لیے کتنے کو بیدار ہیں اور کتنے کو جیسا کہتے ہیں نا ہم نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ آئیے عام لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس تنازع کی حقیقت اور اس کا حل۔ یہ ہے کہ جو مسلمان نیند میں ہے سو گیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمان سو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو آثار تو یہی ہے کہ عالمی جنگ ہو سکتی ہے، باقی تو میرا خدا بہتر جانتا ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے کنیکٹڈ ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کیا مسلمانوں نے اپنے آپ کو بالکل جیسا کہتے ہیں ایک طرح بالکل ہٹا لیا اس تنازع سے، یا عالمی طور پہ فلسطین اب کہیں کھو گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہوتے ہوئے اتنا زیادہ مسائل ہیں، اتنا زیادہ قتل عام ہے، ایون دونوں طرف اسرائیل میں بھی شروع میں قتل عام ہوا، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس کیا بول سکتے ہیں بھائی جان، بس یہ ہے کہ یہ مسلمان کی کمزوری ہے، یہ سب کو جو کوئی ہو رہا ہے نا یہ مسلمان کی کمزوری ہے۔ اگر مسلمان اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے تو یہ معاملہ تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے اسلام کو، اللہ نے اپنے اسلام کو بہت بڑی طاقت دی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے اندر بہت طاقت ہے۔ جس نے سمجھ لیا، خالی پڑھنے سے نہیں، جس نے اس کو سمجھ لیا، تو بس یہ ہم مسلمانوں نے خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیا، لیکن اس کا مقصد ہم نے نہیں۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں مسلمان صرف اپنے حلق تک مسلمان؟ حلق تک مسلمان ہے، یہاں تک نہیں، جب یہاں تک یہ چیزیں جائیں گی تو رحمت ہوگی۔ تو یہ بہت سب سے بڑی پاور ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، اس کے سامنے اور کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو طاقت اور پاور نہیں دی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر طاقت ہے۔ یہ جو ہے نا، آپ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت پورے ورلڈ پہ ہونی ہے، تو جو نبیوں کے فرمان ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے نا جو معاملات خراب ہو گئے ہیں پورے ورلڈ پہ، یہ معاملات اسی لیے خراب ہوئے ہیں کہ اب وہ درست ہونے ہیں، اور ہمارے نبیوں کی باتیں بھی پوری ہونی ہے۔ جو فلسطین میں ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ شروع سے ہو رہا تھا، وہ ان کو پتہ ہے، یا وہ جہاں رہنے والوں کو پتہ ہے۔ ہمیں درست تو آپ کی بات ٹھیک ہے، درست ہو، لیکن جو اتنا زیادہ اس وقت تو مسلمان کوئی بھی نہیں آگے آ رہے، سب خاموش۔ جی بس یہ جو ہے نا، اب وہ باتیں نہیں رہیں، اب وہ ان میں جذبات نہیں رہے، ان میں وہ جو ہے نا گرفت میں آ گئے ہیں، جو جیسے امریکہ کی گرفت میں آ گئے ہیں ہم پاکستانی، وہ قرضئی ہو گئے ہیں، یا اس کے کیونکہ کوئی بھی بڑا چودھری ہوتا ہے نا وہ دوسرے جو ہے نا اس کے متحد ہی رہتے ہیں۔ اب ہم متحد ہو گئے ہیں تھوڑا سا، اور جب ہم متحدی سے نکلیں گے تو پھر ہم جو ہے نا اس کے بارے میں بہت کچھ بولیں گے، لیکن اب ہم متحد ہیں
डरते हैं। हमारी हुकूमतें नहीं इतना कुछ करती, जो डर रही हैं अभी, हुकूमतें भी डर रही हैं कि हम कोई ऐसा अल्फाज ना कहें जिससे अमेरिका एक्शन ना ले नाराज हो जाए। या दूसरा तीसरा नाम से नाराज होए, क्योंकि ये अब उनके पिल्ले जो हो गए हैं। दोनों मुल्कों को कोई देखता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है उनके बारे में, तो फिर उनके बारे में कैसे हो सकती है? सर अमेरिका तो इसराइल के बारे में ठीक ठाक सोचता है, उन्होंने मदद भी भेजी है, जहाज भी भेजे हैं। सर वो सिर्फ बाहर से सोचते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं सोचता कोई। अगर कोई सोचता होता तो उनकी तरफ कोई जाता ना। हम जाते हैं, हम सिर्फ ये पैरों के नीचे जो है उनके झंडे लगा के ऊपर चल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम सिर्फ जज्बात अपने मुल्क में ही आग लगा के जला सकते हैं और कुछ नहीं। ये सिर्फ हम अपने मुल्क में अपने घरों के अंदर बैठ के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा सकते हैं, या फिर बाहर निकल के 4-5 बंदों के बीच में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा हम ऐसी कौम ही नहीं है कि हम कुछ खुद उठ के करें। और इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में क्या कहें? सर इस्लामिक पॉइंट के हिसाब से तो यही हिसाब है कि अगर किसी इस्लामी मुल्क में कोई मसला आया है और वो नहीं सामभ सकते, तो फिर जो दूसरे इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं वो उनकी मदद करें। लेकिन अब वो कहाँ पे इस्लाम रहा? ये तो झटका लगना चाहिए इनको, झटका लगेगा तो ये ठीक होंगे, वरना ये ठीक नहीं होंगे। हम भी मुसलमान हैं, हम भी बीच में ही हैं। नहीं, क्या वजह है हम लोग मतलब इतने ज़्यादा साइलेंट क्यों हैं? एक तरफ इतनी ज़्यादा बारबैरिक किस्म की जंग चल रही है दोनों तरफ, हाँ जी, ठीक है, इधर से रॉकेट फायर होते हैं, वो यहाँ से मिसाइल मारते हाँ हैं, जी। ठीक है। मैं कहता हूँ इंसान कहीं भी मरे इंसान है, इंसान ठीक है ना? इंसानियत ठीक है, खत्म इंसानियत ख़त्म है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि गुलाम है, इसराइल के और अमेरिका का गुलाम है। आप ये देख लें, कोई भी नहीं उठ रहा, कोई भी नहीं उठ रहा। सिर्फ थोड़ा बहुत ईरान ही उनका साइड दे रहा है। वो बेचारा अकेला क्या साथ देगा उनका? सुपर पावर अमेरिका उनके साथ है, इसराइल के। आपको भी पता है, हमें भी पता है। बाकी 56 इस्लामी मुल्क क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने सियासी बयान दे रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे नहीं रुकते, कुछ अमलन करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इन्होंने अगर वो बैतुल मुक़द्दस को बचाना है ना, तो एफर्ट करें पूरी, ठीक है ना? वरना ये क़यामत ही है, और क़यामत की निशानियों में से ये निशानी आ चुकी है। ये आलमी जंग में बदल सकती है, क्योंकि जो हालत इस टाइम फ़लस्तीन की हुई है बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान को कुछ इक़दाम लेने चाहिए इस हवाले से, ठीक है, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका क्या हाल हुआ, उनके बच्चे आप देख ही सकते हैं कि जैसे वो क्या हालत हुई है उनकी। कोई मुल्क उनकी मदद करेगा फिर ही जाकर कुछ सेट होगा। इसलिए पाकिस्तान को भी चाहिए कि कुछ इक़दाम लेने चाहिए। पाकिस्तान ने अभी इमदाद तो भेजी है, खाली इमदाद भेजना ठीक है? नहीं, खाली इमदाद भेजना नहीं ठीक है। इनको चाहिए कि पाक आर्मी भी इनकी मदद करें, ठीक है, क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क है और इसराइल हमारा मतलब कि एक लगा लें कि एनिमी है, हाँ। ठीक है। उस हवाले से अगर हम इस्लामी ममालिक की मदद नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान कैसे कहलाएंगे? पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अभी तक तो ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर ये चीज़ हद से बढ़ती है, ठीक है, फिर जाहिर सी बात है हमारी गैरत मारेगी, जो अभी तक नहीं मतलब हमारी मतलब हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बात बताएं कि पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा? इट विल बी अ मेजर रोल, या हम भी सिर्फ बयान तक रहेंगे? जी हमारा मेजर रोल है, हमने वीडियोस बनानी होती हैं, उन्हें शेयर करना होता है, तो इसके अलावा हमारा कोई मेजर रोल नहीं है। अच्छा, इतने साइलेंट है हमारी वो अफगानिस्तान के जो ईरान के हैं वो लोग जाएंगे, वो वीडियोस नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो उनकी हेल्प भी करेंगे, उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन वो ये काम नहीं करेंगे। स्टेटस लगाएंगे, हाँ, हमने शेयर करते रहना है, हमने मतलब वो वहाँ पे दर्द अपने सुनाते रहना है, और वो बस ये हमारा मेजर रोल है। 3 इसराइल की जंग चल रही है, क्या ये आलमी जंग में बदल सकती है? इंशाल्लाह बदल सकती है जी, अल्लाह के फजल करम से। इंशाल्लाह, क्योंकि मुसलमान तैयार हैं यहूदियों का खात्मा करने के लिए, अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो हमास ने जब स्टार्ट किया, पहले बम हमास ने मारे, बाद में इसराइल ने, क्या हमास ने अगर कोई इसराइली बच्चे मारे अगर, तो वो ठीक था? नहीं, वो गलत है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक। और अब जो हम बड़ी देर से ये जुल्म सह रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी, फ़लस्तीन के अंदर भी, शाम के अंदर भी, सीरिया के अंदर भी हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, और ये हमारे मुसलमान साथी जो हैं वो उन्हीं की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मैकडोनल्ड यूज़ कर रहे हैं, पेप्सी यूज़ कर रहे हैं, कोक यूज़ कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है इन चीज़ों का बाइकआउट स्टेट लेवल पे होना चाहिए? स्टेट लेवल पे बाइकआउट होना चाहिए, और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से ये बाइकआउट होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट इस बात को बैन कर दे कि ये जो बड़े बड़े हैं, जैसे आयरलैंड ने किया है ना, उन्होंने इसराइल से, अमेरिका से अपने सफारती तल्लुकात भी ख़त्म कर दिए, और उन्होंने जो है अपने कारोबारी तल्लुकात भी, कोलंबिया ने भी ख़त्म कर दिए। कोलंबिया ने भी ख़त्म कर दिए। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए, अरब कंट्री को भी चाहिए। तो ख़त्म माना ही नहीं उन्हें कभी। अच्छा, पहली बात यह है कि सर मुस्लिम कंट्री और 57 देश मुल्क हैं, उनका हक बनता है ये सब का जो है ना बाइकाट करे, प्रोडक्ट का भी बाइकाट करे, और ये जो इसकी इसराइल की जारियत है इसका भी भरपूर तरीके से जवाब दे। आपको क्या लगता है हम लोग सिर्फ इमदाद तक ही महदूद रहेंगे या कोई अमली कदम भी उठाएं? सर मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, आप कैमरे में देख के कैसे? मैं तैयार हूँ सर, अल्लाह के फजल करम से मेरी जान। के लोगों को जो देखते होंगे सर मेरा उनके लिए यही मैसेज है
फ़लस्तीनियों, अगर हमारी गवर्नमेंट इजाज़त दे, अल्लाह के फजल व करम से हम फ़लस्तीन के अंदर क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं, हम उनके लिए अपना आखिरी खून तक का कतरा तक बहा देंगे इंशाअल्लाह। आलमी जंग में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे यानी कि PM हैं उन्होंने भी यानी कि अपना बयान दे दिया कि वो न्यूट्रल ही रहेंगे इन सारे मामलात में। बहरहाल ये सारी जो सिचुएशन होती है, ये तो आपको पता है कि इज़राइल की ज़्यादा हक़ में जानी है, क्योंकि फ़लस्तीनी लोग बेशक बेकसूर है, लेकिन उनका साथ देने वाले लोग भी बड़े हैं, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल है वो इज़राइली हैं। तो इसलिए हम सारे मुसलमानों का आपस में यूनाइट होना चाहिए और फ़लस्तीन को डिफेंड करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान का फ़िलहाल कोई रोल नहीं। साइलेंट किलर है हम भी, साइलेंट किलर खामोश ही है ना जी, ऐसे ही है भाई। इसमें 3 कौमें शामिल हैं, यहूदी, मुसलमान और मसीही, क्रिश्चियंस। हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल यहूदी और क्रिश्चियंस तो एक उस पे प्लेटफॉर्म पेज पे आ गए, एक पेज पे आ गए हैं। तो हम लोग अभी भी न्यूट्रल हैं, जूते खा रहे हैं पूरी दुनिया में। और हमारी गवर्नमेंट जो है, आर्मी चीफ साहब हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करना है आपने। सारे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो भी खामोश हैं और बड़े बड़े अलामा साहब जो हैं वो भी खामोश हैं। कोई उस पर रद्द अमल इनका नहीं आ रहा। नहीं, कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपील करता हूँ फ़लस्तीन वालों से, मुसलमानों से, हाँ जी, कि वो इखलाकियात का ख्याल रखें। तो दुश्मन रखे ना रखे, हाँ जी, वो उनको मारें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग ख्याल रखेंगे क्योंकि हम लोग मुस्लिम्स हैं और जो हो रहा है पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं, पाकिस्तान ने अभी इमदाद तो भेजी है, आपको लगता है यहाँ पे कोई किसी लेवल पे हमको मतलब अमन फौज ही भेजने का करें? कभी भी नहीं भेजेंगे भाईजान। राइल शरीफ देख लें, वो सारे मुस्लिम ममालिक की हाँ जी वो सरबराह हैं, लेकिन साइलेंट किलर हैं, बैठे हुए हैं, बिल्कुल तमाशाई बने हुए हैं, सुंडी बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे, कोई भी नहीं बोल रहे। बस इन्हें अपने इसकी इक़्तिदार की लालच पड़ी हुई है। आप देख लें, सारा तमाशा लगा हुआ है। गरीब देख लें कहाँ पे रुल रहे हैं और डॉलर खुद ही फेंक रहे हैं उसमें मार्केट में, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है अब कंट्री नहीं रहा, ये दुकान है सियासतदानों की। ये यहाँ पे वो फेंकते हैं अपना पैसा और जैसे हालात उन्होंने बनाने होते हैं वो बना लेते हैं, और वैसे जब खींचते हैं तो सारे सीख पा हो जाते हैं। लगी हुई आलमी जंग में इस हालत में हो सकती है क्योंकि यूनियन कौंसिल से जिस तरह अमेरिका ने वीटो पावर कर दिया है, तो 15 में से जो 12 मेम्बरान ने उनके हक में वोट दिया है, 2 ने तो वोट यूके और रशिया ने तो बिल्कुल दिए ही नहीं है। तो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो वार को अवॉइड करने के लिए बनाई गई है, अगर वो अपना रोल अदा नहीं करेगी और अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, अगर अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा तो ये काज कर सकता है वार को, और ये एक मेजर वार हो सकती है क्योंकि फ़लस्तीनी और दुनिया में मौजूद दूसरे मुसलमान वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका की तरफ अपनी नज़र लगा के बैठे थे कि वो इस मसले में इन्वॉल्व करेंगे, इंटरवीन करेंगे और इंटरवीन के बाद वार के पीस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन सुपर पावर, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन है, वो ही कोई काम नहीं कर रही, तो कैसे मुमकिन है कि ये एक बड़ी वार ना हो। तो पैलेस्टाइन और दीगर मुसलमानों में तो मायूस हो चुके हैं, और मायूसी आपको पता है उसके बाद वो कोई सेकंड ओपिनियन इसका यही होगा कि वो वार की तरफ जाएंगे, क्योंकि लड़ने के अलावा उनके पास और कोई चांस नहीं है, क्योंकि ग्लोबल पावर्स, वर्ल्ड पावर्स या जो भी मुस्लिम उम्मा है उनकी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से होनी चाहिए। हमारा दिल ये करता है कि हम जाएँ वहाँ पर, हम नौजवान लड़के हम जाएँ वहाँ पर, हम अपना काम करके दिखाएँ। जो अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे तो आगे बनेंगे, सही है ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी बेकार है, वहाँ पे भी बेकार है। तो आपको क्या लगता है ये जंग की क्या वजह है? ये ज़मीन का तनाज़ है या मज़हब की जंग है? सर ये मज़हब की जंग है। अच्छा, ये यहूदियत और इस्लाम की जंग है? सर ये यहूदियत और इस्लाम की जंग है, क्योंकि फ़लस्तीन में सारे मुसलमान भाई बैठे हैं और उधर वो सारे जो हैं क्या कहते हैं गैर मुस्लिम हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़े, वो नहीं चाहते हमारा इस्लाम आगे बढ़े। इस वजह से भाईजान हम क़िबला अव्वल पे कब्जा जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सर ऐसे का हमें चाहिए कि हम आगे निकलें, हम नौजवान कौम को चाहिए हम आगे निकलें। हम क्यों नहीं निकलते आगे? क्योंकि हमारे हुक्मरान नहीं आगे देने देते। ठीक है भाईजान, अगर हम कोशिश करेंगे तो आगे जा सकेंगे। मैं चाहता हूँ हमें भेजे, मैं विदाउट वेपन जाते हैं हम लोग, सही है ना। हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हमें नहीं जाने दे सकते। नहीं, जो हमारे लीडर्स हैं ना, उनको चाहिए कि कोई स्टेप ले। पाकिस्तान अभी कोई बयान ही नहीं दिया इस तरह का, मजम्मत तक नहीं की उस तरह की जैसे सऊदीया ने की। सऊदीया ने मजम्मत की लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। ईरान जो है ना, ठीक है ईरान ने स्टेप लिया है, ईरान ने थोड़ा बहुत उनकी हेल्प की, लेकिन बाकी सब बैठे हुए हैं चुप करके। बाकी रूस वगैरह ने तो उनकी सपोर्ट इसलिए की
क्योंकि अमेरिका उधर कर रहा है स्पेंड यूक्रेन वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट करता है, तो रूस ने उस वजह से अमेरिका की, हाँ जी, अमेरिका की मुखालफत की वजह से इनकी सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीन की। अच्छा, अगर ये अल्लाह माफ़ करे अगर वर्ल्ड वॉर लग गई तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान का रोल मेजर होगा या हम इसी तरह? मुझे तो नहीं लगता, हम इस तरह बैठे ही रहेंगे जिस तरह पहले ही बैठे रहते हैं। मुझे वैसे लगता नहीं पाकिस्तान का रोल मेजर होगा। जब इमरान खान साहब गए थे ना रशिया में, और उन्होंने बारहा कहा था कि हमारी जो वॉर है वो उस दिन स्टार्ट हुई है जिस दिन मैंने विज़िट करना था। हालांकि हमारा विज़िट पहले से प्लान था, यूक्रेन वाली वॉर। हाँ, लेकिन अब ऋषि सुनक, बाइडन ऐसे वहाँ पे सौरो वाला जेस्चर दे के बैठे हुए थे नेतन्याहू के पास, हालांकि वॉर चल रही है लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन इमरान खान साहब का इतना इशू हुआ कि उन्होंने बाद में उनको कितनी दफ़ा ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि भाई मेरा विज़िट पहले से प्लान था, वॉर बाद में स्टार्ट हुई है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो मुस्लिम दुनिया का स्टांस है ना, जैसे मिडल ईस्ट हो गया और उसमें गल्फ़ कंट्रीज़, जैसे सबसे पहले सऊदी अरब का जो स्टांस है वो आज से नहीं, आज से 70-80 साल पहले से, जब से सऊदी गवर्नमेंट और आले सऊद हुकूमत में आए हैं, तब से वो अमेरिका के अलायंस में है। वो अमेरिका के साथ उनका ऐसे ही गठ जोड़ा है जैसे भाई भाई का होता है। और इंटरनेशनल दुनिया में, मैं चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की दुनिया में स्टेट रैशनल एक्टर्स होते हैं। और जहाँ तक मैं अगर बात करूँ सऊदी अरब और यूएसए की बात क्योंकि चल रही है, तो सऊदी अरब कभी भी अपने इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करके फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, और ना कोई इतनी डेवलपमेंट नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सऊदी अरब से कोई मुलाकात हुई है यूएस ऑफिशियल की, उसमें सिर्फ इतना हुआ है कि उसने थोड़ा सा ना उसको इंतज़ार करवाया है, और पाकिस्तानी मीडिया में उसकी इतनी हाइप बनी हुई थी कि यूएस ऑफिशियल को सऊदी अरब ने इतना इंतज़ार करवाया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, जुल्म भी हमारे साथ हो। अगर मैं एज अ मुस्लिम उम्मा के तौर पे ख़ुद को देख लूँ, जो कि हम किसी सेंस में बन नहीं रहे, ना आज तक बने हैं और ना आइंदा बनेंगे, तो जुल्म भी हमारे साथ हुआ है, और एक्सप्लेनेशन और हवा भी हमने बनाया हुआ है कि वी आर ट्रीटिंग देम लाइक दिस, देन व्हाट? क्या वो खुदा हैं आपके लिए, या क्या वो आप उनको क्या समझते हैं? एक बात पाकिस्तान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली कोई इंटरनेशनल दुनिया में स्टांस ही बहुत नहीं लिया। जो हमारे यूएन में इनवाए थे, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कुछ कहा है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, लेकिन कुछ कहा है, लेकिन वो कोई ऐसा स्टांस नहीं है। तुर्की ने जब वो नक्शा दिखाया था ना, कहा था कि हमारा ये था फ़लस्तीन ये था और इजराइल ये था, और अब 3 नक्शे थे। अब उल्टा है, इजराइल को 40 किलोमीटर की पट्टी में, फ़लस्तीन को 40 किलोमीटर की पट्टी में गज़ा में बंद करके रख दिया, और बाकी सारा इजराइल ने वो जो है ना कैप्चर कर लिया हुआ है। आम पब्लिक से जाना कि इस कॉन्फ्लिक्ट की क्या रीजनिंग है, क्या मामला आता है। 75 साल में जो जंगें हुई हैं अरब इसराइल के दरमियान या फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान, उसका बैकग्राउंड क्या है, लोगों को किस तरह इन चीज़ों के बारे में पता लगता है। कई हमें जो नौजवान मिले वो तो इसके बारे में इस हद तक कंसर्न थे कि उन्होंने पूरी, जैसा कहते हैं ना, बैकग्राउंड हिस्ट्रीज़ के बारे में बयान की, लोगों को बताया कि उसकी सोच के बारे में, कि इस सारी सोच के पीछे क्या सोच कार फरमाए, यूरोप की क्या इसके अंदर इनपुट है, अमेरिका किस तरह इसको चीज़ को देख रहा है, यूएन की रेजोल्यूशंस के बारे में लोगों ने बताया। अब मैं अख्ताम पे ये कहना चाहूँगा कि यार देखिए, मेरी एक बात सुने, बेशक ये 2 मुल्कों के दरमियान जंग है, 2 मुल्कों के दरमियान हमें हकीकत माननी पड़ेगी कि इसराइल एक मुल्क बन चुका है। चाहे वो आप उसे कायद-ए-आज़म के तौर पे सोचें कि कायद-ए-आज़म कहते थे ये यूरोप का एक नाजायज़ बच्चा है, लेकिन अब वो एग्जिस्ट करता है। हमें इस हकीकत को मानना चाहिए। पीसफुल जो इसका एक तरीक़ेकार है वो ये है कि 2 रियासती एजेंडा किसी तरीके नाफिज होना चाहिए, और फ़लस्तीन का जो दारुल हुकूमत है वो मशरिकी बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अमेरिका और जो इसराइल और ये जो बरतानिया का गठजोड़ है, किधर गई इनकी ह्यूमन राइट्स, किधर गए इनके फंडामेंटल राइट्स? यहाँ पे तो एक कुत्ता मर जाए तो हमारे मुल्कों की इन्हें मुसीबत ला के रख देते हैं, उधर जाके ये लाखों बच्चों को कहते हैं ना कत्ले आम शुरू किया हुआ इन्होंने। मैं हमास को भी एक तरह से कहना चाहूँगा, मजम्मत करना चाहूँगा, अगर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग इस तरह नहीं करते, अगर उन्होंने कोई यहूदी बच्चा कत्ल किया, लेकिन इसराइल ब्रूटली जेनोसाइड कर रहा है, जो इनके साथ हॉलोकॉस्ट में हुआ ये वही रिपीट कर रहे हैं। क्या फिर हम हिटलर को एक
کیا کہیں, ہٹلر کو ہیرو کہیں, ویلن کہیں, آپ بھی تو اسی کی روش میں چل رہے ہیں, آپ بھی تو اسی طرح لوگوں کو مار رہے ہیں. اگر ہٹلر ظالم تھا تو آپ کیا ہیں؟ آپ لوگ اپنے ضمیر کو نہیں پوچھتے. اور یہ جو یو ایس اے فنڈامنٹل رائٹس کا ایک پرنسپلز کا ہیڈ بنا پھرتا ہے پوری دنیا میں کہ وی آر دا بگیسٹ ڈیموکریسی, وی آر دا بگیسٹ یو کین سے ہیومن رائٹ سپورٹر ان دا ورلڈ, واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کس طرح آپ ایک قتل عام کو کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہسپتال میں بمباری بھی جائز ہے, فلانی چیز بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. اپنی سوچ کو دیکھیں. انٹرنیشنل ریلیشن اور انٹرنیشنل دنیا اس طرح نہیں چلتی. اگر آپ اوپریس کری جائیں گے تو اپوننٹ ایک وقت میں پھر آپ کہتے ہیں ٹیررسٹ بنتے ہیں. وین یو کلڈ سم ون فیملی, ہول فیملی ود بروٹل بمبارمنٹ, the survivor will be become a terrorist. The simple thing is that جو سروائیول ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھائی میرے تو سارے مار دیے, میں آپ کے سارے مار دوں. سوچنے کی بات ہے, یہ سوچے اس بات کو. کیمرہ مین مغیث شاہد کے ساتھ اٹھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.